Good evening, welcome to Delight Classes. We are in continuation with the topic figure of speech. So let's proceed further. We have already studied simile, metaphor, personification. Now, apostrophe. Apostrophe is a figure of speech which is used to address a lifeless object or an abstract idea. Apostrophe is a figure of speech which is used to address a lifeless object or an abstract idea as if it were living beings. As if it were living beings. जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो लिविंग बीइंग है, उसको एड्रेस मतलब संबोधित करना, बुलाना, बोलना उससे, तो जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. एग्जाम्पल, ओ डेथ, where is thy sting? Oh death, where is thy sting? तो आप बोलेंगे कि इससे पहले हमने पर्सोनिफिकेशन पढ़ा और उसमें भी तो ऐसा ही था, उसमें भी डेथ को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा था. बट देयर इज अ डिफरेंस. इन दैट केस इट वाज नॉट एड्रेस, संबोधन नहीं था. We treat in personification dead or abstract or lifeless things as having life, but we do not address them. So that is the difference between apostrophe and personification. Personification का दूसरा एग्जाम्पल मिल्टन. Thou shouldn't be living at this hour. तो मिल्टन से बात कर रहे हैं. जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में ओ डेथ, डेथ से बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं डेथ को. सेकेंड सेंटेंस में मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं. सो लाइफलेस, डेड और एब्स्ट्रैक्ट को एड्रेस करना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में आता है? एपोस्ट्रोफी. हाइपरबोल, a figure of speech which is used to make the fact exaggerated. फैक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताना, फैक्ट को exaggerate कराना या करना है हाइपरबोल होता है. All the perfumes of Arabia will not sweeten this hand. सारे परफ्यूम्स अरेबिया के इस हाथ को सुगंधित नहीं कर सकते, बिकॉज ब्लड ऑफ मर्डर इज देयर. ये शेक्सपियर के नॉवल से लिया गया है और शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है. Second is she shed oceans of tears. Tears shed तो ठीक है, लेकिन shedding tears is a fact. But she shed oceans of tears is not possible. So the fact is exaggerated many times. So figure of speech is hyperbole. अगले फिगर ऑफ स्पीच पर आते हैं ऑक्सीमोरॉन. A figure of speech which is used to express two contradictory qualities of same thing. A figure of speech which is used to express two contradictory qualities of the same thing. किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की दो विरोधाभासी क्वालिटीज को बताना, दो ऑपोजिट क्वालिटीज को बताना ऑक्सीमोरॉन कहलाता है.
Padma was a wisest fool. So Padma is the person here. And two opposite words, wisest and fool. Wise और fool दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज का यूज किया जा रहा है किसके लिए? पद्मा के लिए. She is irregularly irregular. She is regularly irregular. She किसी फीमेल के लिए यूज किया गया. रेगुलर और इरेगुलर दो ऑपोजिट क्वालिटीज को इसमें बताया गया है. लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट. लाइफ के दो ऑपोजिट क्वालिटीज को इसमें बताया गया है, ओपन भी और सीक्रेट भी. तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. सिमिली, कंपैरिजन ऑफ two objects of different kind having at least one similarity, comparative words as like as used. Metaphor, comparison of two different objects having at least one similarity but no comparative word is there. Apostrophe is a figure of speech in which a dead, abstract or non-living thing is addressed. Hyperbole is exaggeration of fact. And oxymoron is making use of two opposite words, two opposite qualities for a single person or for a single object. Euphemism, a figure of speech which is used to say an unpleasant thing in a pleasant manner. Euphemism means a figure of speech which is used to say an unpleasant thing in a pleasant manner. किसी थोड़ी बुरी लगने वाली चीज को जब प्लेजेंट मैनर में, अच्छे मैनर में हम बोलते हैं, उसको थोड़ा सा रिफाइंड वे में बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? यूफेमिज्म कहलाता है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, वो मर गया नहीं कह के अगर हम ये बोलते हैं he has fallen asleep, he has fallen asleep, तो क्या हुआ? ये किसी डेड के लिए बोल रहे हैं, किसी की डेथ हो गई है उसको बताने के लिए बोल रहे हैं. She is telling me a fairy tale. She is telling me a fairy tale. कहानी मत सुनाओ, बात मत बनाओ. ऐसा कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा. तो क्या बोलते हैं उसकी जगह? कि वो मुझे कहानी सुना रही है, मूर्ख बना रही है. तो क्या बोलेंगे? She is telling me a fairy tale. So saying things which are unpleasant in a pleasant manner is euphemism. अब आते अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, एंटीथेसिस. एंटीथेसिस, a figure of speech which is used to express two opposite ideas. Two opposite ideas to achieve emphasis is known as antithesis. दो opposite ideas, a figure of speech which is used to express two opposite ideas to achieve emphasis is known as antithesis. Emphasis का मीनिंग होता है स्ट्रेस देना, जोर देना. किसी चीज पर जोर देने के लिए कोई दो ऑपोजिट आइडियाज को कंपेयर करना, उनको बताना, क्या कहलाता है? एंटीथेसिस. ऑक्सीमोरॉन में हमने पढ़ा दो ऑपोजिट क्वालिटीज को बताने के लिए. एंटीथेसिस में हम पढ़ रहे हैं दो ऑपोजिट आइडियाज. एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. मैन प्रपोजेस,
God disposes, ये एक प्रोवर्ब है। इसका क्या मीनिंग है? मनुष्य प्लान बनाता है, मैन मेक्स प्लान्स, बट गॉड डिसाइड्स फेलियर और सक्सेस। मैन मेक्स प्लान्स बट गॉड डिसाइड्स सक्सेस और फेलियर। तो ये इस प्रोवर्ब का मीनिंग है, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। दो आइडियाज हैं। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। ये दो आइडियाज क्या बता रहे हैं, किस बात पर जोर दे रहे हैं? जोर इस बात पे दे रहे हैं कि बोलना अच्छा है, मगर कभी कभी साइलेंस के द्वारा अपने एम को, अपने मोटिव को एक्सप्रेस करना ज्यादा बढ़िया होता है। इट इज मच बेटर टू कीप साइलेंस, टू मेंटेन साइलेंस, टू रिमेन साइलेंट समटाइम्स इन कंपैरिजन टू स्पीकिंग समथिंग। और इसीलिए हमारे भारत देश में बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है मौन व्रत रहने की। मौन व्रत क्या है कि कभी कभी हम अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए चुप रहे। नेक्स्ट एग्जांपल इज टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ह्यूमन नेचर है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि मनुष्य हैं, गलती तो हो ही सकती है। मनुष्य हैं, गलती तो हो ही सकती है। टू एरर इज ह्यूमन, लेकिन इंपॉर्टेंट है उस गलती को माफ कर देना। गलती को माफ करके क्या होता है? डिवाइन पर्सनालिटी हो जाते हैं हम लोग। टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। सो till now we have studied simile, metaphor, personification, oxymoron, apostrophe, euphemism and antithesis.